Hello, good morning students. Today is 20th July 2021, day is Wednesday, and today we will learn a new poem of The Crocodile of third chapter. The third chapter in your English literature book, and the name of poem is The Crocodile. Okay? I hope you have completed the question and answer of both topics. The first topic, a thief meets Tenali, and the second topic, the Lion King. Already I had taught that topic second, and I had sent its PDF to you. I checked the question and answer same, so no need of it means again teaching that topic to you, because you know that you have already the video and its PDF. So only write that question and answer in your textbook. Many of students have written already, so they messaged me. No problem, I have to check your textbook, so on that time I'll check your textbook carefully. Crocodile students, do you know crocodile means what? आपने देखी है crocodile? कहाँ रहती है ना? आपने देखा है क्या कभी crocodile को? So here is a beautiful poem of the crocodile. Okay. Now the poet of this poem, Roald Dahl. What is the name of that poet? Roald Dahl. Okay. So he is, I think, English poet. So very beautiful poem. Here it is. Think of your favorite Roald Dahl moment, and surely a poem or a song cannot be far away. He is back with this delightful poem, or on Crocky Walk, the Crocodile. Read on. So first of all, I will read this poem first, and then I'll explain in English and in Hindi. So pay attention. Okay. No animal is half as wild as Crocky Walk, the crocodile. On Saturdays, he likes to crunch 6 juicy children for lunch. And he especially enjoys just 3 of each. 3 girls, 3 boys. He smears the boys to make them hot with mustard from the mustard pot. But mustard doesn't go with girls. It tastes all wrong with plaits and curls. With them, what goes extremely well? It butterscotch and caramel. It's such a super marvelous treat when boys are hot and girls are sweat. At least that is Crocky's point of view. He ought to know he had a few. That's all for now. It's time for bed. Lie down and rest your sleepy head. Shh! Listen. What is that I hear? Galloping softly up the stair. Go lock the door and fetch my gun. Go on, child, hurry quickly, run. No, stop, stand back, he coming in. Oh, look, that crazy greenish skin, the shining teeth, the greedy smile. It's Crocky Walk, the crocodile. I read the poem, students, and let us see its meaning in English and Hindi. You know, students, open your textbook first and look at the picture which you can see in your textbook. Here is the crocodile. Normally you have seen the crocodile in
pots, sea, rivers, okay. Ponds, sorry, not pots, students, sorry, ponds. So there you have seen this crocodile and how horror teeth and the color and mostly the teeth. So but यहाँ पे different है. Now here you can see in your textbook the crocodile sat on the chair. In his hand there are spoons and bowls and something or dining table. On the dining table he is having lunch. है ना. तो यही इस पोएम की खासियत है कि इसमें कुछ एक नई बात बताई गई है. जैसे हमारे लाइफ में भी डिफरेंट संडेज होते हैं, डिफरेंट डेज होते हैं, एंड एज पर डेज वी एंजॉय एवरी डे. सो लाइक दैट द एनिमल ऑल्सो, इट इज इमेजिनेशन ऑफ दैट पोएट. He is doing imagination of how it means the crocodile is celebrating his Saturday or Sunday. So in that poem we have to see that. Now no animal is half as wild as Crocky-Walk the crocodile. यहाँ पे VILE wild का मतलब होता है विक, WICKED, विक्ड. तो ऐसा कोई एनिमल नहीं है या तो किसी एनिमल की जैसी वो क्रोकोडाइल नहीं होती है कि वो ऐसी थिक हो या सॉरी ऐसी वीक हो. ओके. सो काफी आपने देखा होगा, इट हैज लॉट ऑफ वेट. क्रोकोडाइल हैज, वो बहुत बड़ी होती है, मगरमच्छ बहुत बड़ी होती है ना स्टूडेंट्स. आपने देखी होगी, शायद पिक्चर में देखी होगी. यू कैन सी इन आवर टेक्स्ट बुक. मगरमच्छ काफी बड़ी होती है, वो कोई ऐसी छोटी सी या वाइल्ड नहीं होती है. सो ऑन सैटरडेज ही लाइक्स टू क्रंच. क्रंच मीन्स व्हाट? ईट विथ नॉइजी ग्राइंडिंग साउंड. मंच, जैसे हम कर्रम 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 ऐसे बोलते हैं ना, वैसा खाना, कुरकुरा खाना है ना, उसे बोलता है क्रंच. सो सैटरडे उसे क्या पसंद है? सैटरडे मीन्स पता है ना, शनिचर के दिन उसे क्या खाना पसंद है? क्रंची खाना. जो खाते समय कैसा हो? क्रंची हो, बजे वो ऐसे. पता है आप जब चिप्स खाते हो तो यू कैन हियर दिस साउंड, क्रंच क्रंच क्रंच. सो लाइक दैट. सो ऑन सैटरडेज ही लाइक्स टू क्रंच 6 juicy children for lunch. लेकिन उसे क्या खाना पसंद है? नॉट पोटैटो चिप्स. ही लाइक्स 6 चिल्ड्रेन खाना पसंद है लंच के लिए उसे, है ना. पता है ब्रेकफास्ट सुबह में किया जाता है, लंच दोपहर में किया जाता है, और क्या डिनर रात में किया जाता है ना. सो सैटरडे के दिन उसे क्या खाना पसंद है? 6 चिल्ड्रेन खाना पसंद है. मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज, दे आर कॉल्ड चिल्ड्रेन, नो. सो कितने चिल्ड्रेन खाना पसंद है क्रोकोडाइल को? 6 चिल्ड्रेन खाना पसंद है लंच के लिए, खाने के लिए. एंड ही स्पेशली एंजॉयज, और वो खाना जो होता है 6 चिल्ड्रेन का, वो एंजॉय करके खाता है. मगरमच्छ खाती है एंजॉय करके. उसमें क्या होने चाहिए? जस्ट 3 of each, 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज. उसे सिर्फ बॉयज नहीं चाहिए या सिर्फ गर्ल्स नहीं चाहिए. एक्चुअली ही वॉन्ट्स बोथ, मीन्स गर्ल्स ऑल्सो एंड बॉयज ऑल्सो, दोनों भी खाना पसंद है उसे. तो सैटरडे के दिन लंच के लिए वो क्या खाना पसंद करती है? चिल्ड्रेन. एंड आउट ऑफ देम सम विल बी, इट मीन्स 3 विल बी गर्ल्स एंड 3 आवर्स बॉयज खाना पसंद है. सो लेट अस सी अभी आगे क्या होता है. सो ही स्मेयर्स द बॉयज. स्मेयर्स मीन्स व्हाट्स? वो उसके मुंह में जो लिक्विड होता है, पता है ना आपने, सभी जानवर में होता है, हमारे इसमें भी, हमारे मुंह में भी लिक्विड होता है. सो क्रोकोडाइल के मुंह में भी लिक्विड होता है, तो उसे बोलता है स्मेयर्स. स्प्रेड अ थिक लिक्विड. सो वो उसे फैलाती है. ही स्मेयर्स द बॉयज टू मेक देम हॉट. हॉट मतलब क्या? गरम करना. सो बॉयज को गरम करने के लिए, हम पता है ना खाना गर्मा गर्म ही खाते हैं. सो बॉयज को गरम करने के लिए या उनको गरम बनाने के लिए वो अपने मुंह का लिक्विड होता है वो स्प्रेड करती, इधर उधर फैलाता है मगरमच्छ. विथ मस्टर्ड फ्रॉम द मस्टर्ड पॉट. मस्टर्ड पता है आपको? जो काली कलर की होती है मसाले के डिब्बे में. देखो आप, यू आस्क योर मदर व्हाट इज अ मस्टर्ड सीड्स.
So that mustard seeds we use for every veggie. Okay, तड़के के लिए यूज करते मस्टर्ड सीड्स. तो he smears the boys to make them hot with mustard from the mustard pot. और इतना ही नहीं तो वो मस्टर्ड भी यूज करे. ये एक इमेजिनेशन है स्टूडेंट्स, इट इज नॉट अ रियलिटी. सो ऐसा सोचा गया है, ऐसा बोला गया है, और ये एक इमेजिनेशन पे पोएम है, ऐसा कुछ रियल में नहीं होता है. सो नो नीड ऑफ स्केयरिंग. ओके. सो उसने क्या किया, उस बॉयज को गर्म करने के लिए अपने मुंह से लिक्विड स्प्रेड किया और उसमें मस्टर्ड सीड्स भी ऐड किए. एक मस्टर्ड सीड का जो पॉट होता है उसमें से मस्टर्ड सीड भी निकाले. बट मस्टर्ड डजंट गो विथ गर्ल्स. लेकिन जो गर्ल्स होती है ना, उनको मस्टर्ड्स पसंद नहीं होते हैं. इट टेस्ट ऑल रॉन्ग विथ प्लेट्स एंड कर्ल्स. सो अगर गर्ल्स के लिए मस्टर्ड यूज किया, उनको ये करने के लिए, हॉट करने के लिए, साथ में खाने के लिए, तो टेस्ट कैसा होगा, बिगड़ जाएगा. विद देम व्हाट गोज एक्सट्रीमली वेल. अगर गर्ल्स को खाना है तो क्या करना चाहिए, किसके साथ खाना चाहिए. सो इज बटरस्कॉच एंड कैरेमल. कैरेमल और बटरस्कॉच ये क्या होता है, एक मिठाई का प्रकार होता है, स्वीट जो हम जिसे बोलते हैं. तो उसमें ये कैरेमल और बटरस्कॉच एक मिठाई का टाइप है. सो गर्ल किसके साथ, गर्ल को अगर खाना होता है क्रोकोडाइल को, तो वो मस्टर्ड के साथ नहीं खाएगी. she will use or he will use, sorry, he will use butterscotch and caramel. तो उनके साथ वो गर्ल को खाना पसंद करता है ना. It's such a super marvelous trait when boys are hot and girls are sweet. So अपने ही मन को वो बोल रहा है, अपने आप ही सोच रहा है कि अगर मैं मस्टर्ड का तड़का लगा के बॉयज को खाऊंगा और स्वीट के साथ मतलब बटरस्कॉच और कैरेमल के साथ गर्ल को खाऊंगा, तो मेरा खाना कितना लाजवाब बनेगा. ऐसे अपने आप से वो सोच रहा है. एट लीस्ट दैट इज क्रॉकीज पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स ओपिनियन, सेल्फ ओपिनियन. What we think, what he thinks, that is his opinion, means point of view. So here, at least that Crocky's point of view, उसके मत के अनुसार, उसकी सोच के अनुसार, क्रॉकी के अनुसार, he ought to know, he had a few. मतलब उसे पता है, KNOW know means पता होना, या उसे पता होना चाहिए, और उसे surely पता है. ought to means श्योरली पता होना. जब हमें डेफिनेटली कोई बात पता होती है, सो दैट टाइम द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ought to we use. इट मीन्स 100% we know that, हमें पता होता है तब. सो he ought to know, 100% उसे पता है कि उसे इसमें से थोड़ा सा ही चाहिए था. he had a few. That's all for now. It's time for bed. बिकॉज क्यों, अभी तो ये सोने का समय है. इट्स टाइम फॉर बेड. इट मीन्स इट्स टाइम फॉर बेड मीन्स सोने के लिए जाना है या सोने के लिए समय हो जाना. लाई डाउन एंड रेस्ट योर स्लीपी हेड. मीन्स स्लीपी हेड मीन्स व्हाट, बेड के ऊपर, सिर के ऊपर चद्दर ओढ़ के सो जाना. इट इज मीन्स स्लीपी हेड. लिसन, What is that I hear? और उसमें से कोई बोल रहा है कि चुप बैठो, सुनो, मैं क्या सुन रहा हूँ. गैल्फिंग मतलब नॉइजी वे, मूविंग इन अ क्लम्सी और नॉइजी वे. पता है जब ये एनिमल चलते हैं तो एक अलग आवाज आती है, उनके चलना, उनके पैर अलग होते हैं. सो दैट इज गैल्फिंग सॉफ्टली अप द स्टेयर. उनका एक वे होता है, और वो हमारे जैसे धीरे धीरे नहीं चलते. उनके चलने का आवाज भी ऐसा बहुत बड़ा होता है. सो इसमें से कोई बोला, लिसन, व्हाट इज दैट आई हियर. गल्फिंग सॉफ्टली अप द स्टेयर. गो लॉक द डोर एंड फेच माई गन. जाओ दरवाजा लगा दो और मेरी जो गन है
वो मेरे पास ला कर दो। गन पता है ना आपको, मेरे पास वो ला कर दो। गो ऑन चाइल्ड, हरी क्विकली रन, जाओ जल्दी जाओ, भागो जल्दी से। नो स्टॉप, स्टैंड बैक, ही कमिंग इन। अरे रुको रुको, मत जाओ, वापस आ जाओ, शायद वो फिर से आ रहा है। ओ लुक, दैट क्रेजी greenish skin. Here in this picture you can see the greenish, पूरी हरी हरी त्वचा है क्रोकोडाइल की। Oh look, that crazy greenish skin, the shining teeth, the greedy smile. Shining means चमकते हुए दांत, और greedy means लोभ से भरी हुई। पता है दुनिया में बहुत सारे ग्रीडी पीपल होते हैं। ग्रीडी डॉग की स्टोरी आपने सुनी होगी, है ना। ग्रीडी इट मीन्स लोभी, किसी बात की आसक्ति होना, किसी बात के पीछे पीछे भागना, दैट इज मीन्स ग्रीडी। सो वो कैसा दिख रहा है? हाउ इज द क्रोकोडाइल लुकिंग? द शाइनिंग टीथ एंड द ग्रीडी स्माइल, इट्स क्रॉकी वॉक द क्रोकोडाइल। और ये तो क्रोकोडाइल है, इट्स क्रॉकी वॉक। नेम ऑफ दैट क्रोकोडाइल इज क्रॉकी वॉक। Now here is the poem. I think a grandfather, it means grandfather is reciting this poem for his grandson, because of some lines are related with bed, go and bed. Sometimes no, you give lot of trouble to your grandparents. On that time they say you go and sleep there, dog will come, go and sleep, crocodile will come. So I think like that poem is there. So nice poem of that crocodile. So poem is over. I will give its hard words to you. Still you have to read the poem carefully and try to read new words which are first involved in this poem. Okay, like these wild smears, है ना? That's point of view. First time we are reading this word in this poem, so read it carefully. Bye and take care.